सो आई हैव गिवन यू द सीट्स, ठीक है, ये सर्कुलेट मैंने कर दिया है। बायो वाला कहाँ तक पहुँचा? ठीक है, तो आप उस पर अपने नाम के आगे मेंशन कर देना। ग्रेट, सो शुड वी स्टार्ट नाउ? ग्रेट, कहाँ तक बेटा हुआ था? अप टू विच पॉइंट वी हैव कवर्ड? हुआ था क्वोशिएंट रूल हुआ था, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन, and in the differentiation basically first we have seen the algebraic function and how we can do the differentiation of the algebraic function. Then after we have seen come fast, then we have seen logarithmic, then we have seen trigonometric function, sine, cosine and all. Then we have seen exponential function, right? And I have given you certain rules of the differentiation like product rule as well as quotient rule. तो मैंने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? प्रोडक्ट रूल एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि भाई प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? एनीवन? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इफ y is product of two functions u and v, then dy dx is equal to u means first function into dv over dx means differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. So if you have two functions, they are in the product format u and v, then dy dx is equal to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. This is the product rule. Then after that I have given you the quotient rule also. And what is the quotient rule? If y is equal to n by d means numerator over denominator, means functions are arranged in the format of n by d, u by v like that, then dy dx is equal to, first what we have to write? Exactly, first denominator, then differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided over denominator square. So this is called as the quotient rule. ये आपका क्वोशिएंट रूल है। हमने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था और क्वोशिएंट रूल बताया था। नाउ we will try to use this product and quotient rule. क्या बच्चे हमने इसके पहले साइन का डिफरेंशिएशन जाना? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। पर क्या बेटा हमने tan x भी सीखा? क्या हमने tan x का भी डिफरेंशिएशन सीखा? नहीं सीखा, राइट? तो हम tan x का भी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर क्यों ना हम उसको डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेशन कर लें, और साथ ही साथ हमें डेरिवेशन कर लें, क्योंकि इससे हमें क्या होगा कि एक हमारा रूल भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? नाउ सपोज y is equal to tan x. So can you write tan x in the format of u by v? क्या आप tan x को u by v के फॉर्मेट में लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? Exactly, tan x can be written like sin x over cos x. Here sin x is numerator and cos x is the denominator. Now can we apply the quotient rule here? Then dy over dx is equal to first cos x, then d by dx of sin x, first denominator, then differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided over square of the denominator, right? Like this. Now
this is basically cos x now. Then this is dy dx. Dy dx is equal to, first we have to write the cos x and derivative of the sin x, cos x, and cos x into cos x, exactly, that is the cos square x. This is cos x, derivative of the cos x is minus sin x. So this is sin x and this is minus sin x. Then minus sin square x, and minus minus plus. So you can write cos square x plus sin square x divided over. It is cos square x, and what is the sum of cos square x plus sin square x? Exactly, that is 1 upon cos square x, and 1 upon cos square x is sec, 1 upon cos is sec, exactly, that is sec square x. Then finally, what is the derivative of the tan x? What is the, exactly, the derivative of this tan x is sec square x, right? This is sec square x. It is sec square x. It is not something like sec x square. That would be the different. आपने अगर sec x square लिख दिया तो अलग बात हो जाएगी. आपको क्या करना है, sec square x हो जाएगा. तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे? sec square x आ जाएगा, right? Then try to note down it. फर्स्ट डे आज तिवारी ठीक है. Have you written now them? Okay. Bio. Name? Name has been mentioned? Okay. Shiva. Okay. Right? So what is the derivative of the tan x? Sec square x. Right? So in this way, can you get the derivative of the cot x? Can you get the derivative of the cot x, sec x and cosec x? No, cot x can be written like, cot x को हम कैसे लिख सकते हैं? Cos x over sin x. For that case, cos x will work like the numerator and sin x will work like the denominator, and we can apply the rule, isn't? So it is your part. That will take the time ना. Now it is your part. That try to write the derivative of. बाद में इसको आराम से आप लोग कर लेना. You have to write the derivative of. You have to write the derivative of cot x, then sec x, and then cosec x. Cot x, sec x, and cosec x. Right? So you have to write. You have to write the derivative of the cot, sec as well as cosec. ठीक है, ये काम आप कर लोगे. क्यों? cot को cos बाई sin कर लेना, sec को 1 upon cos कर लेना, और cosec को क्या कर लोगे? 1 upon sin कर लोगे. यहां से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा. अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताना, ठीक है? So this is basically derivative, isn't? Apart from that, there is one more type of function that is called as the logarithmic function, है ना, या log function. ठीक है ना. तो बेटा एक और फंक्शन हम एक फंक्शन और हम लोग सीखते हैं. एक फंक्शन हम लोग और सीखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन. क्या आपने लॉग जैसी कोई बात सुनी कभी? लॉग, हाँ बताओ क्या होता है बच्चे, लॉग क्या होता है?
हाँ कोई नहीं, आपको जो भी पता हो। लॉग बेटा, लॉग लॉग किसी को पता है? लॉग, लॉग के बारे में एनीवन? चलो भाई, लॉग, लॉग या लॉगरिथमिक। चलो भाई देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको लॉग समझाता हूं कि बेसिकली लॉग क्या है। लॉग एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इट इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर जो किसी बड़ी बात को बहुत ही छोटे ढंग से कह देता है, एक बहुत बड़े इवेंट को बहुत आराम से बोल देगा। जैसे गुजरात के कच्छ में भूकंप आया, पूरा गुजरात तबाह हो गया, और आपने बोला वहां तो बस भूकंप ही आया है। या उसका जब आपने नंबर में उसको बताया ना, तो हार्डली आपने 8 बता दिया, कभी आप इसके बियॉन्ड नहीं गए क्या? तो पूरा शहर की तबाह हो गया, त्रासदी हो गई, और आपने उसको 8 और 9 से नापा। ठीक है, मींस कि अब आप देखो इतने बड़े इवेंट को इतना छोटा नंबर क्यों लोकेट किया? क्योंकि लॉग यही कहता है। लॉग कहता है कि तुम मेरी मदद लो, मैं बड़े से बड़े नंबर को, मैं बड़े से बड़े इवेंट को बहुत ही छोटे ढंग से दिखा सकता हूं। देखो कैसे बेटा, यहां पर देखो 10 to the power 5, 10 to the power 5, राइट? 10 to the power 5 को क्या लिखा जा सकता है? 1, एंड 1 के बाद कितने टाइम 0? 1 2 3 4 5, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ दिस वन इज इन 10 to the power 5, दिस 10 इज द बेस। ये 10 क्या है? बेस है। 5 क्या है? पावर है। और ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? नंबर है। नाउ द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लॉग आल्सो, है ना? इसको हम लॉग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट log base 10 of the given number, that is 1345, 5 times 0 is equal to 5। अब मुझे ये नहीं बताना है कि नंबर बेसिकली 1 लाख से, मुझे ये नहीं बताना है। मुझे सिंपल कहना है कि एक ऐसा नंबर जिसके लॉग का वैल्यू 5 है। मैंने कहा नंबर, द वैल्यू ऑफ द नंबर इज द वैल्यू ऑफ द लॉग ऑफ दैट नंबर इज 5। तो बेटा आप आराम से क्या इमेजिन कर पाओगे? मैंने कहा एक ऐसा नंबर जिसके लॉग का वैल्यू 5 है, तो एक्चुअली वो नंबर है क्या? 10 to the power 5। एक्चुअली नंबर वो है क्या? 10 to the power 5, है ना? अच्छा, अगर मान लो मैंने कहीं पे, अगर मान लो मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर जिसके लॉग का वैल्यू, मैंने कहा एक ऐसा नंबर जिसके लॉग का वैल्यू 6 के बराबर है, तो रियल में वो नंबर कितना है? सच में वो नंबर कितना है? 10 to the power 6। वो कितना है? 10 to the power 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6, लाइक दैट। तो देखो ना जी, क्या 10 आर्गुमेंट ऑल्सो, पता नहीं, आई डोंट नो, राइट? ठीक है, तो ये जो आपका पावर है, ये जो आप इस पूरे नंबर को जो आपने सिर्फ पावर बता दिया ना, पूरा नंबर ना बता करके आपने सिंपली क्या कर दिया? उसका पावर बता दिया। यही क्या है? लॉग है। दिस वन इज अ लॉग। यही क्या है? लॉग है। तो एक बड़े इवेंट को, एक बड़े नंबर को बहुत छोटे ढंग से समझा देना ही क्या कहलाता है? लॉग कहते हैं। अब लॉग भी बच्चे दो तरीके का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लॉग। एक तो आपका होता है कॉमन लॉग, एक आपका क्या होता है? कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग का बेस क्या होता है? 10। कॉमन लॉग का बेस होता है 10। और एक होता है आपका नेचुरल लॉग, एक होता है आपका नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बच्चे जो बेस होता है ना, वो ई होता है। और हम ये उसी ई के बारे में बात करें जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, इसके पहले वाले क्लासेस में। ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट, ये वही वाला ई है। और इस ई की वैल्यू कितनी? इस ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 या 19/7, यही होता है। तो होता है, इसको आप लिखते हो लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को आप ln लिखते हो। क्या लिखते हो? ln, नेचुरल लॉग। अगर आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो तो देखो वहां पे दोनों ही बटन आपको दिए होते हैं, एक लॉग और उसके बगल में नेचुरल लॉग। ठीक है, तो अगर बेस 10 है तो
अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग, और अगर बेस ई है तो ये आपका नेचुरल लॉग हो जाएगा, जिसको हम लोग ln कहते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन आल्सो हैव अ ग्राफ, इसका भी एक अपना ग्राफ है। ठीक है, वो आप मैथ्स में समझ लेना, राइट। बट यहां पर हम अगर डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो अगर y, इफ y इज ln x, अगर y ln x के बराबर है, देन dy dx की वैल्यू होती है 1/x, राइट। अगर y क्या है, ln x है, नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। उसका डेरिवेटिव बच्चे 1/x के बराबर होता है। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में रिलेशन भी है, एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, ln x इज इक्वल टू 2.303 log common log x, मतलब log base 10x। so this is the relation between natural log and common log। ठीक है, so this is the logarithmic function or log function। ठीक, so finally we have seen algebraic function, then trigonometric function, then exponential function, and at last logarithmic function or log function। there can be lot of type of the functions। अब इसके अलावा सिंक फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है, आपका ट्रायंगुलर फंक्शन होता है, ट्रेपेजॉइडल फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन होता है, स्क्वायर वेव होती है, तमाम तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे। आप जैसा ग्राफ ड्रॉ करो, सिंपल है, आप कोई भी आर्बिट्री ग्राफ ड्रॉ करो और उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ढूंढ लो, देखो वो उसका फंक्शन बन जाएगा। अब पहले तो कॉम्प्लेक्स होता था, आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो और उसका इक्वेशन निकालना है कॉम्प्लेक्स होता था, अब तो आसान है। आप ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर आप कोई भी एआई टूल ले लो, कोई भी एआई टूल, चैट जीपीटी ले लो या कोई भी एआई टूल लो, कट से फोटो खींचो, बताओ, बोल दो इसका इक्वेशन लिखने के लिए, वो कोई इक्वेशन ला करके लिख करके दे देगा। सिंपल है, आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो और आप कोई भी एआई टूल यूज कर लो जो कि मैथ्स के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है। या फिर आप कोई भी या जनरल कोई भी आप एआई टूल यूज करो, वो क्या करेगा, उसका इक्वेशन आपको ले जा करके दे देगा, लिख करके दे देगा, पक्का, ठीक है। तो कोई भी आप कई तरह के आपके फंक्शंस हो सकते हैं, पर अभी आपको पढ़ना क्या है, वही अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। अगर इतने फंक्शंस को जानते हैं तो हम बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा अपना, ये था डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले मैंने आपको शुरुआत, अब याद करो, शुरुआत के क्लासेस में मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों करते हैं, और उसके बाद हमने पूरा डिफरेंशिएशन करना सीखा। अब हम आ जाते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना, हम इसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो क्या बेटा आपने कैसा क्लास 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है क्या, रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज आपने कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है क्या, रेट ऑफ चेंज? कहां पे पढ़ा था भाई आपने रेट ऑफ चेंज जैसा वर्ड, कहां पे पढ़ा था? क्लास 10th स्टैंडर्ड में। मुझे लगता है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। फिर आपको लिखवाया गया होगा कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो बेसिकली I इज इक्वल टू Q बाई टी ना। तो रादर देन टेकिंग लॉट ऑफ द चार्जेस, हम चार्जेस को थोड़ा लिमिट कर लेते हैं, इसकी लिमिट लगा देते हैं, मतलब देर आर फ्यू चार्जेस, दैट इज dq, चेंज इन द चार्ज अपॉन चेंज इन द टाइम टेकन,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। देन I इज इक्वल टू dq बाई dt, है ना। नेक्स्ट अभी आप काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, v इज इक्वल टू आप पढ़ोगे dx बाई dt। x को बोलते हैं पोजीशन, t को बोलते हैं टाइम। चेंज इन द पोजीशन अपॉन चेंज इन द टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड और वेलोसिटी। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो जहां पर बच्चे रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है ना, तो पहले तो ध्यान से समझना, रेट का मतलब होता है, रेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद द टाइम। तो न्यूमरेटर में जो कुछ रहे, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा। रेट उसी के लिए बना हुआ है, रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब ही होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को एनालाइज करना। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, क्या, रेट ऑफ चेंज ढूंढना। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ देयर इज अनदर एप्लीकेशन, एंड व्हाट इज दैट एप्लीकेशन। क्या बच्चे आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन पढ़ा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किस टाइप का इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरीके के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर। और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा, और आपको पता है यहां पर y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, जबकि m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, कांस्टेंट है। एक काम करो तुम बेटा यहां पे dy dx करो। अगर dy dx करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस सी। क्या ऐसा आएगा, तो क्या आप इसको ऐसे लिख पाओगे क्या, m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। क्या ऐसा लिख पाओगे, d बाई डी एक्स ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और ये बेटा क्या हो जाएगा, m एंड d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और ये आ जाएगा आपका ये आएगा dy dx। तो क्या यहां से m की वैल्यू तुम लिख सकते हो dy dx। तो m क्या है भाई, m है क्या m स्लोप ही है, क्या m स्लोप ही है। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे, अगर आपको किसी ग्राफ का या किसी फंक्शन का स्लोप पता करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy dx लेना पड़ेगा। अब क्योंकि ये स्लोप, अब यहां पर क्योंकि आप ये जो लाइन है, लाइन का स्लोप बीच में चेंज नहीं होता है, लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स होता है। तो यहां पर जो स्लोप आया वो पोजीशन इंडिपेंडेंट आया, राइट। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहां पे dy dx की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहां पे dy dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के इक्वल आएगी। 2 के इक्वल, अब ये 2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये 2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। और क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार जब आप लाइन ड्रॉ कर देते हो ना, तो लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया, हर जगह इक्वल रहता है। पर ऐसा हर केस में नहीं होगा, ऐसा पैराबोला में नहीं होगा। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में आपका स्लोप पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता रहता है, राइट। तो वहां पे आपका जो स्लोप है वो बेसिकली पोजीशन डिपेंडेंट है। जैसे देखो यहां पर मैंने यहां पे पैराबोला मान लो ड्रॉ किया, मैंने मान लो यहां पर एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। तो देखो यहां पे ये आपका x है और ये आपका y है, और बेटा मैंने यहां पर एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं यहां का स्लोप देखूं और यहां का स्लोप देखूं, तो क्या दोनों पॉइंट का स्लोप एक ही होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहां का एंगल थीटा है, यहां का एंगल भी थीटा है, थीटा 2 थीटा 1, थीटा 2 अलग है, थीटा 1 अलग है। और अगर थीटा वेरी कर गया तो स्लोप वेरी कर गया। तो ये क्या है, आपका x डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप x पे आगे जा रहे हैं स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर हम इस तरह के ग्राफ का, इस तरह के पैराबोला का जनरल इक्वेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या यही आएगा, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ ट्राई टू टेक द डेरिवेटिव। बेटा dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2x। अब देखो ये जो आपका dy dx है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है,
dy dx ये आपका कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। dy dx इक्वल टू 2x, अरे बोलो तो, वेरिएबल हो गया ना। dy dx x के साथ वेरी कर रहा है। अब आप यहां से देखो, अगर आप x का वैल्यू 0 करोगे तो बेसिकली dy dx की वैल्यू कितनी आएगी? 0 के बराबर। मींस ग्राफ का यहां पर फिलहाल स्लोप 0 है, और सच बात भी यही है। अगर हम बेटा x की वैल्यू 1 रखें, देन dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या 1 क्या 2 आ जाएगा? यानी अगर x की वैल्यू यहां पे 1 हो तो बेसिकली यहां पे स्लोप कितना हो रहा है? 2 हो जा रहा है। 2 पर स्लोप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 पे स्लोप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। So this dy dx is also useful to find out the slope of a given function at a particular time interval or a particular point. तो ये जो आपका जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है, इसकी मदद से आप किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, इजंट? तो नोट कर लो इसको। क्या हुआ? डाउट? Should I clean the board? Have you written it? Great. Next, can you get the slope of y is equal to x square plus 2x plus 5? You have to find out the slope at x is equal to 1. So this is the function, and you have to find out the slope of this function at x equal to 1. Answer is right. So what we have to do? We have to calculate the dy dx, and dy dx is equal to derivative of x square. Exactly, it's a 2x. Derivative of 2x. Derivative of 5. Then here 2x plus 2, that is going to be position dependent. It is not going to be constant. ये आपका position dependent है. अब आपको x equal to 1 पे evaluate करना है. Then dy dx, try to take x equal to 1. अगर आप x equal to 1 लोगे, that is 2 into 1 plus 2, and answer is 4. इसका आंसर क्या आएगा? 4 के इक्वल आएगा, right? So this is the basically slope.
ओके, क्या हो गया? हाँ बेटा, dy dx 2 into 1 plus 2, 2 into 1, दिस इज 2 into 1 plus 2 ना, कहाँ पे? यहाँ पे ब्रैकेट में, इट्स 1 एक्चुअली ना, तो मैंने x की वैल्यू 1 लिखा है, x की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, क्यों? ठीक है, कैन आई क्लीन द बोर्ड? नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको जो जनरली काम आएगा और इसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बना सकोगे, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima. We can check, we can get whether the function is going to take a maximum value, whether the function is going to take the minimum value, और किसी फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किसी फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है? तो अगर कोई फंक्शन अपने वैल्यूज को चेंज कर रहा होता है, तो उसके जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब वो सबसे कम पे होता है, मतलब जब उसका एम्पलीट्यूड सबसे कम होता है, और एक ऐसा समय आता है जब अपने सबसे हाई पे होता है। तो जब वो हाई पे होता है दैट इज कॉल्ड एज दी मैक्सिमा, और जब सबसे लो पर होता है तो मिनिमा। जैसे अगर हम अर्थ सरफेस के बारे में बात करें तो जो ये किसी यहाँ पे जो माउंटेन का जो पीक है उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा, राइट? और जो सी का जो बॉटम लेवल है उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं वापस बेटा वापस में साइन का ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो इट इज ए एक्स एंड दिस वन इज ए साइन एक्स, ये एक्स है और ये क्या है? साइन एक्स है। Then are you able to draw the graph of the sin x again? sin x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? कैसे बनता है? That starts from 1 or 0? That starts from 0. तो 0 से +1, 0 -1, क्या ये ऐसा चला जाता है? Now this one is and this one is, so this is the maxima of the sin x and this is the minima of the sin x. मीन्स अगर बेटा मैंने यहाँ पे वहां y इज इक्वल टू मैंने लिखा sin x, तो आप बोलोगे कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +1 होगा और y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा। बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आप ग्राफ से इस बात को निकाल सकते हो। बट एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पर मैक्सिमा है, जहां पे मैक्सिमा आ रहा है, तो किसी x की वैल्यू के लिए किसी x पर ही तो ये मैक्सिमा आ रहा है ना। एंड व्हाट इज दैट x? आखिर वो x है क्या? व्हाट इज दैट x? आखिर वो कौन सा x है? वो x की वैल्यू क्या है जबकि फंक्शन अपने मैक्सिमा को अटेन कर रहा है? दैट x इज 90 डिग्री, दैट x इज 90 डिग्री। तो एट द 90 डिग्री दिस इज मैक्सिमा, ये मैक्सिमा या मैक्सिमम है। 0, 90, 180 and this one is 270 ना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। x 270 पे क्या ये -1 पर है? तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस x इक्वल टू 270 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट? तो बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ दे दिया गया किसी फंक्शन का और आपसे कह दिया गया कि आप उसका मैक्सिमा वाला पॉइंट बताओ कि मैक्सिमा वो कब ले रहा है, और आप उसका मिनिमा वाला पॉइंट बताओ, तो आप बिल्कुल एक्स एक्सिस को देख करके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देख करके वो पॉइंट पता कर लेंगे। फिर आपसे कह दिया गया कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसका हाइट जो है वो आपको उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे देगा। बट क्वेश्चन इज, अगर आपको ग्राफ ना दिया जाए, अगर मैंने आपको ग्राफ नहीं दिया होता
और आपको उसके ग्राफ के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता। अगर मैंने यूं ही दे दिया होता कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, देन ट्राई टू चेक whether where is the minima of the function and where the minima of the function, as well as try to find out the maximum value of the function as well as the minimum value of the function. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने आपको ऐसे ही दे दिया, आप थोड़े समय के लिए ग्राफ भूल जाओ, आपको पता ही नहीं है ग्राफ क्या है, मैंने ऐसे बोल दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब है, और y की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और y की मिनिमम वैल्यू क्या है। पक्का? अब आखिर हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, ऐसे सवाल को हम लगाएंगे कैसे? ध्यान से देखो बच्चे, मान लो कि आपके पास कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है y, ये आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये फंक्शन फिलहाल इस तरीके से चल रहा है। इसका क्या नेचर है नहीं पता है, पर हाँ देयर आर सर्टेन चेंजेस। एक बार फंक्शन राइज हो रहा है, एक बार फंक्शन राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, फिर राइज हो रहा है। तो व्हाइल द राइजिंग एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक समय ऐसा, अब इस समय क्या होगा, y क्या करेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को लेगा। तो मैं लिख सकता हूं ये जो पॉइंट है ना, ये मान लो x1 है, x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है, x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर फंक्शन धीरे धीरे फॉल कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन इसके नीचे अब नहीं जा रहा है, मींस फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x1 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर देखो तो दोनों ही पॉइंट पर, नाउ ट्राई टू ड्रॉ द टेंजेंट, दोनों पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो और यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा? अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा? यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, इंक्लाइन, इसका ये इंक्लाइन होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये जो दोनों पॉइंट हैं, चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ और या तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, क्या दोनों ही पॉइंट के जो टेंजेंट है क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं तो दोनों टेंजेंट का स्लोप कितना है, इन दोनों का स्लोप कितना है? A line parallel to x axis, what is the slope? स्लोप ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। और आपको पता है कि स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan 0 का वैल्यू 0, यहां पर भी क्या हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0। यानी दोनों ही पॉइंट का जो स्लोप होगा क्या 0 होगा। और क्या अभी हमने इसके पहले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको समझाया कि स्लोप को आप dy dx कह सकते हो। तो बेसिकली दोनों जो ये दोनों पॉइंट हैं, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, क्या dy dx की वैल्यू 0 है, क्या यहां पर dy dx की वैल्यू 0 है? मींस जी बताइए, कोई प्रॉब्लम? क्या नहीं, स्लोप 0 है, इसका भी स्लोप 0 है और इसका भी स्लोप 0 है। 0 स्लोप समझ रहे हो ना, दिस इज द 0 स्लोप। स्लोप 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, वो कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, कांस्टेंट है, पर वो कांस्टेंट है कितना, 0 है। बच्चे ये बात समझ आ रही है आपको? तो किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट पर, दोनों ही पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट? मींस अगर आपके पास कोई एक रैंडम फंक्शन है
और आपको उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आर मिनिमा ढूंढना है। आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आर मिनिमा ढूंढना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो dy dx और उसको क्या करो? 0 से इक्वेट करा दो। और जब अगर आप ऐसा करोगे देन यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द x। यहां से आपको x की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी और ये जो वैल्यूज मिलेंगी, ये जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, ये क्या हो सकता है? ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं? दे कैन बी आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये दोनों, ये जितने भी आपको पॉइंट्स मिले, मान लो x1, x2, x3, इसमें से ये x1 आपका ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, और ये कहानी सबके साथ चलेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि उसमें मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है? इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक स्टेप बियॉन्ड जाते हैं, 1 स्टेप बियॉन्ड। आप बात करोगे तो नहीं समझ पाओगे, आप बहुत बात कर रहे हो भाई। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एक स्टेप बियॉन्ड जाते हैं। एक स्टेप बियॉन्ड जाने का मतलब ये हुआ कि सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द मैक्सिमा। आप अगर मान लो मैक्सिमा पर खड़े हो तो आपका अगला कदम जो होगा क्या वो नीचे की तरफ जाएगा? मींस अब आप हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हो, अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो अगर मैं इसके अगले वाले पॉइंट का अगर मैं स्लोप देखूंगा, इस अगले वाले पॉइंट का अगर मैं स्लोप देखूंगा तो इसके अगले वाले पॉइंट का स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। और अगर बच्चे मैं मिनिमा पर हूं तो मेरा अगला कदम क्या ऊपर की तरफ होगा? क्योंकि मैं मिनिमा पर हूं तो मेरा अगला कदम ऊपर की तरफ होगा, तो मतलब इसके नेक्स्ट पॉइंट का स्लोप क्या होगा? एग्जैक्टली इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है नेक्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि ऑलरेडी आपने एक डेरिवेटिव ले लिया है dy dx, फिर आप एक पॉइंट आगे जा रहे हो, मतलब आप उसका दूसरा डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव। उसके इमीडिएट पॉइंट के बाद उसके तुरंत वाले पॉइंट पे जाना, मतलब आपको क्या करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है dy dx ऑफ dy dx ऑफ dy by dx। इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो, इसको लिखते हो d2y ओवर dx2, और आप इसको बोलते हो सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हो? सेकंड डेरिवेटिव। जैसे अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन अगर मैंने फिर से ऐसे लिख दिया d2y ओवर dx2, तो इसका मतलब इस डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव, तो dy dx की वैल्यू कितनी आई है? 2x आई है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट वुड बी 2 ओनली ना। d2y dx2 क्या हो जाएगा भाई? d by dx ऑफ 2x, 2 बाहर आ जाएगा, एंड d by dx ऑफ x कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। आर यू गेटिंग? सो हाँ, किसका बता रहे? वही तो मैं बता रहा हूं। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? सब जो फंक्शन हमें पहले दिया हुआ था, इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करा दिया, और 0 से इक्वेट कराने पर आपको जो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट क्या हो सकते थे? मैक्सिमा और मिनिमा। फिर आपको उसी फंक्शन का, यही जो फंक्शन है उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। और सेकेंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे, ये बेटा जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, करें राइट हियर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 को मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, स्टेप नंबर 2 पे। तो अगर आप यहां पे अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव की 2 पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है,
d2y अपॉन dx2, इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो इसका वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब, इसका वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब तुम जिस पॉइंट पे खड़े थे वो मैक्सिमा था या मिनिमा था? तो अगर d2y dx2 का वैल्यू आपका नेगेटिव होता है तो इसका मतलब आप जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है? मैक्सिमा है। नेगेटिव तब हम होते हैं जब हम सबसे ऊपर चले गए होते हैं, तो उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब देखो, नेगेटिव मतलब मिनिमा नहीं, ये कंफ्यूजन रहती है। नेगेटिव मतलब हमारा अगला कदम, तो हमारा अगला कदम नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब हम कहां पे खड़े हैं? टॉप पर। टॉप का मतलब मैक्सिमा पर हैं। तो अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट आपका मैक्सिमा है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कौन सा पॉइंट है? वो कौन सा पॉइंट है? मिनिमा है। ठीक है। समटाइम्स ये जीरो भी आ जाता है, तो दैट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसको बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट करो। ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट पार्ट है। व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ना, जब हम एक दो सवाल लगा लेंगे तो अपने आप ये प्रोसेस आपको भूल जाएगा, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। जब हम एक दो सवाल लगाते हैं तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैलकुलस में मुझे भी 11th स्टैंडर्ड में यही दिक्कत होती थी। जब हमें सर हमारे रूल सिखाते थे तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता था, रूल कैसा रूल है कैसे, लेकिन जब उस पर दो चार सवाल बन जाते थे ना, तो एक समय के बाद रूल भूल जाता था, फिर वो सवाल लगते थे। राइट। अब आपको रूल आप याद करते हो क्या कि मुझे सड़क पे हमेशा बाईं तरफ चलना है? ऐसा रूल याद करते हो? पर वो आपके आदत में आ चुका होगा, आपको लेफ्ट में चलना है तो चलना है। राइट। तो कुछ समय बाद रूल जो है ना आपको उतने याद नहीं रहते। हाँ, उसका जो है एप्लीकेशन आपको याद रहता है, आप उसको अपने जीवन में फॉलो करते हुए चलते हो। जी बताओ, बोलो। हाँ हाँ बताओ, कौन सा डाउट है? ये वाला यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि सेकेंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना था। आपने इसका पहला डेरिवेटिव निकाला तो क्या आंसर आया? 2x। फिर आप जब इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो दूसरा डेरिवेटिव का मतलब कि इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2x आई है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा, देन दैट इज 2। साइन का पहला डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन। तो साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस, अगला डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन, यानी साइन का सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन। पक्का? कॉस का सेकेंड डेरिवेटिव, तो कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन का फिर डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस। पक्का? कोई दिक्कत? तो ये बच्चे आज मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि जो रेट ऑफ चेंज जैसा वर्ड है, रेट ऑफ चेंज को आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। फिर मैंने आपको सिखाया कि आप किसी भी फंक्शन का स्लोप पता कर सकते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव। एंड नेक्स्ट वन जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज मोर प्रोमिनेंट, मोर यूजफुल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करेगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव यू कैन चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमा और वेदर द फंक्शन इज मिनिमा। तो आज मैंने इसका इंट्रोडक्टरी क्लास लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। एक डीपीपी मेरे पास है, डेली प्रैक्टिस पेपर। आप कुछ बच्चों ने शायद मुझसे लिया था। जिन बच्चों के पास डीपीपी नहीं होगा, तो बेटर टू सिट इन द क्लास विद द डीपीपी। आप उस डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ बैठो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। वैसे आपके बोर्ड पर वो दिख जाता है आपको, मैं बता देता हूँ, पर वो डीपीपी के साथ आप बैठोगे ना, तो आप यहाँ के लिए भी आपके पास असाइनमेंट रहेगा और घर के लिए भी आपके पास काम रहेगा, राइट। तो यू कैन गेट द डीपीपी फ्रॉम मी, ठीक है। 9984006263 टेक्स्ट करो। कुछ बच्चे और आ जाएंगे तो एक मैंने थोड़ा सा ग्रुप बनाया है, उसको और एक्सटेंड कर देंगे और उसमें भी ड्रॉप कर दिया करेंगे, ठीक है। देन शुड आई कंक्लूड द क्लास? थैंक यू क्लास।